The patient is a 41-year-old female who was admitted to a hospital for evaluation of high blood glucose level. Her complaints were fatigue, weakness, lethargy, decreased concentration, and decreased memory over the last 18 months. So these issues are with her for the last 1.5 years. She also gained 40 pounds over the last 2 months with central distribution of weight gain and neck obesity. Question number 1. Are these signs and symptoms which she is presenting with associated with diabetes? Because she has a complaint of high blood glucose level. So it is like सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. तो इसका मतलब है आगे जो भी साइन सिम्टम बोलेंगी तो वो मोस्ट प्रोबेबली हमें तो ये लगेगा कि डायबिटीज है. तो क्या सारे डायबिटीज को जस्टिफाई कर रहे हैं? हर कंप्लेन्स वर फटीग होती है डायबिटीज में, वीकनेस, लेथार्जी, डिक्रीज कंसंट्रेशन, डिक्रीज मेमोरी. Who can have a good concentration? A diabetic or a non-diabetic? Who can get their work done with high level of concentrations? A diabetic or non-diabetic? In your random guess, it should be a non-diabetic. ये तो वही वाली बात है कि डिजीज सही काम करेगा कि नॉन डिजीज करेगा. Of course, a non-disease person will be able to do the work better than a disease person, whatever the disease is. Disease बंदे को कभी बेहतर तो नहीं बनाती है ना. It always, of course, damages some parts of the body, whatever the disease is. So decrease in concentration, okay. Decrease memory, diabetes में. किस किस के घर डायबिटिक हैं? जिम, चलो ओके. So has your elders ever complained of loss of memory or loss to शायद मैं ज़्यादा hard word use कर रहा हूँ. Decrease in memory or some fluctuation in that case after the development of diabetes? I don't think so. It's a very rare complaint to get presented with the diabetes. और इसको first time diagnose हुआ है. She's not known diabetic. मैं तो आप लोगों से वो बात पूछ रहा हूँ कि आपके फैमिली में जो नॉन डायबिटिक्स हैं, माइट बी ऑन इंसुलिन और एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस, अगर उनको ये प्रॉब्लम नहीं है तो एक लेडी को फर्स्ट प्रेजेंटेशन में विद डायबिटीज मेमोरी लॉस कैसे हो सकता है? इट्स वेरी रेयर. मैं ये नहीं कहूंगा एब्सेंट है, नहीं हो सकता, जीरो चांसेस हैं. देयर इज नेवर जीरो चांसेस इन मेडिसिन फॉर एनीथिंग, बट यस, इट शुड नॉट बी देयर. सो इट इज समथिंग अनरिलेटेड. It is something deviating from our normal course of diabetes which we want to think upon. तो इसका मतलब है ये कुछ और है जिससे. अच्छा, एक और बड़ा कंक्लूसिव पॉइंट है लास्ट 2 लाइंस में. Central distribution of weight gain. Now always remember this very important point. ये जब वेट गेन की बात आती है ना, तो वेट गेन सिंक्रोनस है कि एसिंक्रोनस है, बहुत मैटर करता है. सिंक्रोनस मीन्स है कि पूरी बॉडी ओवरऑल ही वेट गेन की है. द एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, द पेशेंट कैन टेल यू, he can show you his or her previous pic, like when she thinks that she was not having a weight gain and now the current status in front of you, you can compare it. But if this kind of obesity, there is central distribution. Central distribution means your tummy mostly and the area of buttocks, and the rest of the body has not shown any sign of increased weight. This is a asynchronous kind of a increase in weight. तो ये भी इंक्रीज इन वेट पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देखना पड़ता है. क्योंकि अच्छा, मैं आपको क्लियर करता हूं, जो वैसे वेट गेन होता है ना खाने की वजह से, वो सिंक्रोनस होता है जनरली, बिकॉज एवरीवेयर इन द बॉडी देयर इज द इंक्रीज फैट डेपोजिशन इज गोइंग ऑन. बट व्हेन देयर इज दिस काइंड ऑफ एसिंक्रोनस, देन the physician has to go through the other things as well. देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ है. By the way, the diagnosis of this scenario is Cushing syndrome. The patient is having Cushing syndrome. C for Cushing and C for cortisol. Cushing syndrome occurs because of too much cortisol in the blood of a patient. Too much cortisol. इतना ज्यादा कॉर्टिसोल है कि उसकी बॉडी अब उसको बियर नहीं कर रही है और उसके साइन और सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो गए. व्हाट कैन बी द कॉजेज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम? बताओ.
ट्यूमर ऑफ एडिनल कॉर्टेक्स। कल मैंने आपको एक विड्थ वाइज डायग्राम दिखाई थी जिसमें आपको बताया कि द थिकेस्ट जोन इज फॉर कॉर्टिसोल। सो अगर कोई ट्यूमर एडिनल ग्लैंड का होगा तो एल्डोस्टेरॉन भी ज्यादा आएगा, लेकिन उससे ज्यादा जो बॉडी पे साइन सिम्टम्स के इफेक्ट होंगे वो किसके होंगे? वो कॉर्टिसोल के होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि एल्डोस्टेरॉन के नहीं आएंगे, उसके भी आएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग केस सिनेरियो बताता हूं, रियल लाइफ। अ पेशेंट प्रेजेंटेड एट द साइकेट्रिक आउटडोर of the Jinnah hospital, and she was again a female, late 30s, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेट 30s में थी और उन्होंने प्रेजेंट किया, मैरिड, मदर ऑफ 4, और कंप्लेन ये था कि साइकोसिस डेवलप हो रहा है पिछले कुछ 2 साल के अंदर। सिम्टम ऑफ साइकोसिस, एक रैंडम रैश हो जाना विदाउट एनी पर्टिकुलर रीजन, रैंडम डिप्रेशंस, एपिसोड्स ऑफ क्राइंग ओवर द पास्ट विदाउट एनी अपेरेंट कॉज, और भी बहुत सारे सिम्टम होते हैं साइकोसिस के, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, हेलोसिनेशंस होती हैं। तो इससे प्रेजेंट किया। अब अगर कोई साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में ऐसे आता है और उसके साथ प्रेजेंट करता है, तो साइकेट्रिस्ट का जनरल पैटर्न ये होता है, दे ऑलवेज ट्राई टू फाइंड के रीजन, कोई फैमिली इश्यूज और समथिंग लाइक दैट, और they were very rich family, और वो भी सारा सॉर्ट आउट किया गया, all family members were there, and she herself told that she is totally fine, individually भी उसके इंटरव्यूज किए गए, so there was no positive family history जिसको कोरिलेट किया जाता। जब इस तरह से साइकेट्रिस्ट को पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री नहीं बनती तो देयर मस्ट बी अ कॉज देयर, and when she was evaluated further she was referred from a psychiatric department to the endocrinology department, because psychosis is one of the very prime feature of Cushing syndrome। ये आपने याद रखना है, बड़ा डेविएटिंग सा पॉइंट है। अच्छा, अभी तो आपको इसकी प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी, फाइनल ईयर मेडिसिन के अंदर जो मेडिसिन का पेपर 2 आता है रिटर्न में, उसमें एंडोक्राइनोलॉजी और साइकेट्री दोनों ही उस पेपर का पार्ट है, और उसमें जब वो, अगर वहां पे ये सिनेरियो बहुत मिसलीडिंग हो सकता है, a 40-year-old lady presented with the symptom of psychosis, as a final year student वहां पे पढ़ने में लगता है ओके ये तो साइकेट्रिक का कोई है, उसी का डायग्नोसिस है, क्योंकि आप ये सोचते हैं ना, आप सबसे पहले करने किस पार्ट से आया, किस चैप्टर से है, कौन से यूनिट से आया क्वेश्चन। जब आप यूनिट सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली आपका नॉलेज कंसाइज होकर उधर आ जाता है, फिर आप चीज को पकड़ लेते हैं। तो वहां पे ये चीज डेविएटिंग हो सकती है कि साइकोसिस के सिम्टम है, लेकिन एक्चुअली ये फाइंड आउट किया गया तो वो किस तरफ चला गया, वो कुशिंग सिंड्रोम। अगेन मैं साइकोसिस की बात क्यों की है यहाँ पे, इसको एसोसिएट करने के लिए, ये जो इसमें मेमोरी का लॉस का फंक्शन आ रहा है, ये जो डिक्रीज कंसंट्रेशन आ रही है, और वो भी अभी डायबिटीज डायग्नोज भी नहीं हुई है सही तरह से, सिर्फ ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा से प्रेजेंट किया, अभी तो डायग्नोसिस बनना है इसका, so it can't be because of the increased blood glucose level at this time, so it is again due to this increased cortisol levels। ये बात यहां तक समझ आ गई? ओके, कुछ हमने टर्म्स पढ़ रखी हैं, मैं उसको ना जरा अलाइन करने लगा हूं, आपको एक बात समझानी है बड़ी इंपॉर्टेंट, इधर जरा गौर से देखना है। डू यू रिमेंबर दिस, हमने इंसुलिन में किया ग्लूकोनियोजेनेसिस, what is the common output of both? Increased blood glucose level। इंसुलिन इन दोनों प्रोसेसेस को क्या कर रहा था? इनहिबिट कर रहा है, बिकॉज इंसुलिन डज नॉट वांट ग्लूकोज टू कम आउट इन द ब्लड, इट इज एक्चुअली द ऑपोजिट। अब मैं आगे कुछ हार्मोन लिखने लगा हूं जो ये काम करवाते हैं। ऑफ कोर्स कौन होना चाहिए टॉप ऑफ द लिस्ट? ग्लूकागॉन, इंसुलिन का जो ऑपोजिट है कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रीन। मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं आपको, बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी दोनों में हेल्प करेगा ये। मैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन, विच नेम द टू बॉडी सेल्स वेयर ग्लाइकोजन कैन बी स्टोर्ड? लिवर, स्केलेटल मसल। मैं इसको अलहदा लिख रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं लीवर ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड मसल ग्लाइकोजिनोलाइसिस। किसी वजह से लिख रहा हूं, मैं बताता हूं मैं क्यों लिख रहा हूं। अब यहां पे ना आप जरा ऑर्डर याद रख लो, चीजों का ऑर्डर याद रख लो, इट विल हेल्प यू अ लॉट, कि कौन से प्रोसेस को कौन प्रेफर कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे याद रखना आपके एमसीक्यूज के आंसर्स के लिए। तीनों प्रोसेसेस, तीनों हार्मोन इक्वली प्रेफर नहीं करते।
देयर इज अ प्रीडोमिनेंस ऑफ सम हार्मोन विद सम ऑफ द प्रोसेसेस। अब मैं 1 2 3 लिखूंगा ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सीधा कॉन्सेप्ट क्लियर बन जाए। इफ द प्रोसेस इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, देखो तीनों के रिजल्ट में ब्लड में क्या बढ़ने वाली है, ग्लूकोज बढ़ने वाली है, तो ओवरऑल सेंस तो सेम आ रही है, नहीं, प्रोसेस प्रेफरेंस डिफरेंट है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लूकोनियोजेनेसिस, the increase in blood glucose level due to gluconeogenesis is preferred by cortisol। अगर आपने ग्लूकोनियोजेनेसिस में 3 हार्मोन को एड्रेस करना है, नंबर 1 किसको देना हमेशा, कॉर्टिसोल। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेफर कर। मैं ये नहीं कह रहा वो बाकी काम नहीं करता या बाकी हार्मोन ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। नंबर 2 ग्लूकागॉन, नंबर 3 एपिनेफ्रिन। मैं किसके किसके कंकॉर्डेंस से लिख रहा हूं, प्रोसेसेस के कंकॉर्डेंस से। ये आंसर मैं हार्मोन के कंकॉर्डेंस से भी देता हूं अभी, कि अगर कॉर्टिसोल है तो उसका 1 2 3 क्या है, अगर एपिनेफ्रिन है तो उसका क्या है, और उसका ग्लूकागॉन है तो उसका क्या है, वो भी अभी बात कर लेते हैं। पहले नंबरिंग यहां पे लिख लेते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लीवर ग्लाइकोजिनोलाइसिस, नंबर 1 इट्स ग्लूकागॉन, नंबर 2 is cortisol, again number 3 is epinephrine। And if I am talking about muscle glycogenolysis, number 1 is epinephrine, number 2 is glucagon, and number 3 is cortisol। इस तरीके से आपकी किसी भी बुक में आइदर फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री मेंशन नहीं, लेकिन एमसीक्यू इस तरीके से। मैं अक्सर पढ़ाते हुए ये सोच के नहीं आता हूं, लेकिन अल्लाह की मदद की वजह से जो एमसीक्यू मेरे जहन में आते हैं उस वक्त मैं एमसीक्यू बताने की बजाय मैं उसके नॉलेज को एड्रेस कर देता हूं। यहाँ पे कई दफा ऐसा होता है, तो ये बिल्कुल मैंने एमसीक्यू के कंकॉर्डेंस से इसको एड्रेस किया। अब क्वेश्चन ये है, ग्लूकोनियोजेनेसिस इन ह्यूमन बॉडी इज डन बाय, अब चारों वो लिखे होंगे, पांचों जो वो काम करवाते हैं, तो वहां पे बंदा कंफ्यूज, और ए बी ऑप्शन भी नहीं होता, ऑल ऑफ दी अबव भी आपने देखा, ऑल ऑफ द अबव तो बहुत रेयर ही ऑप्शन होता। तो आपने इस तरह से इसको याद रखा। अब मुझे बताओ, अब मैं अब आपसे बात पूछता हूं, क्योंकि मैंने कॉर्टिसोल करवाना है ना, तो उसके फंक्शन 2 3 तो हम यहीं पे कर लेंगे। बाय द वे, ये कौन सी मेटाबॉलिज्म है, कार्बोहाइड्रेट, और ये तीनों प्रोसेसेस एक ही चीज को कर रहे हैं, इंक्रीजिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ऑपोजिट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो कॉर्टिसोल ब्लड में ग्लूकोज लेवल सबसे प्रोमिनेंट तरीका किससे इंक्रीज करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। जब वो ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा लेता है फिर किससे करता है, लिवर में ग्लाइकोजन तोड़ के, और लास्ट उसका बहुत ही जो माइन्यूट फंक्शन है, मसल ग्लाइकोजन। लेकिन अगर मसल की ग्लाइकोजन तोड़ना मकसद है, तो ये काम सबसे अच्छा कौन करता है, एपिनेफ्रिन। मसल्स एक्टिविटी सिंपैथेटिक, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन का काम सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन पे ही नहीं है, सिर्फ वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड ऑल दैट इफेक्ट नहीं है इसका, सिर्फ एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का, दे हैव आल्सो वेरी स्ट्रांग मेटाबॉलिक एक्शंस एज वेल। व्हाट अबाउट ग्लूकागॉन, सबसे फेवरेट काम क्या है ग्लूकागॉन का ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करवाने के लिए, लिवर की ग्लाइकोजन को तोड़ना। और इसके साथ वो और किसकी हेल्प लेता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्पीड अप करवाता है। और लास्ट में और थोड़ा सा जो काम रह जाता है वो क्या करता है, मसल का करता है। ये इसकी प्रेफरेंस के लिहाज से बात कर रहा हूं। इसमें आपको 2 1 2 ही नजर आ रहा है, आपको लग रहा है शायद ये और ये काम इक्वल है, लेकिन अगर मैं ग्लूकागॉन के कंकॉर्डेंस से बोलूं, नंबर 1 नंबर 2 एंड नंबर 3, ये मैं ग्लूकागॉन के कंकॉर्डेंस से बात कर रहा हूं। फॉर एपिनेफ्रीन, ओके, नंबर 1 तो हमें पता चल गया। अब नंबर 2 और 3 में से चूज करना हो तो नंबर 2 एंड नंबर 3। ग्लाइकोजिनोलाइसिस ही प्रेफरेंस है एपिनेफ्रीन की, ग्लूकोनियोजेनेसिस पे बहुत कम, बहुत कम। एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस इज डिफाइंड एज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम प्रोटीन्स, आसान करते हैं, फ्रॉम प्रोटीन्स,
फ्रॉम एनी नॉन ग्लूकोज सोर्स कह सकते हैं हम जब डेफिनेशन वाइज, लेकिन एक्चुअली बॉडी में ये काम कैसे होता है? प्रोटीन्स। इसका मतलब है कॉर्टिसोल क्या कर रहा है? वो सेल की प्रोटीन्स को किसमें कन्वर्ट करवा रहा है? ग्लूकोज। इसका मतलब है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ कॉर्टिसोल ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिक हार्मोन है कॉर्टिसोल। ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करवा रहा है ऑन द सेक ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को यूज करवा के। मैंने आपको एक बात बताई थी, ग्लूकोनियोजेनेसिस को रन करने के लिए इट इज अ वेरी वेरी एनर्जी कंजर्विंग प्रोसेस। इसको रन करने के लिए एनर्जी कहां से आती है? फैट के ब्रेकडाउन। फैट टूट के कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट नहीं हो रहे, लेकिन वो टूट के वो सारे एटीपीज दे रहे हैं जो कहां यूज होते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस के। सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ कॉर्टिसोल ऑन लिपिड मेटाबॉलिज्म? लिपोलाइसिस। आप चीजों को मैं जिस तरह बता रहा हूं उस तरह अगर याद रखो ना, तो आपको सब कुछ याद रखना ही नहीं पड़ेगा। अगर आप ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आपको सब कुछ पीछे डिटेल में पता है कि उसको क्या क्या चीजें लेके चलने वाली। ये हो ही नहीं सकता कि एक हार्मोन ग्लूकोनियोजेनेसिस तो करवा रहा है और फैट को ना तोड़ाओ। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस रन ही नहीं होगा जब तक बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड नहीं होगी। वो कैट2 एंजाइम का एक हमने डिस्कस किया था, कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज एट द लेवल ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो वो सारे एंजाइम यहां पे आ जाएंगे, लेकिन कॉर्टिसोल का मैं ओवरऑल एक्शन आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं यहां। There is one difference between liver glycogenolysis and muscle glycogenolysis, and that was, other than the location, it supplies, once it forms the glucose, supplies the body, but the glucose formed here is used by the muscle only, and that was because of deficiency of one enzyme, glucose 6 phosphatase. Very good. तो इसका मतलब है कि एपिनेफ्रीन जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को अप रेगुलेट करता है, उसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज इन्वॉल्व नहीं होता। एम आई राइट? क्योंकि है ही नहीं तो इन्वॉल्व कहां से होगा? बात वही है। अब मैंने हार्मोन के कॉन्टेक्स्ट से की, मैं भी एपिनेफ्रीन करवा नहीं रहा हूं आपको, मैं जस्ट यहां पे बात मुझे याद आ गई तो मैंने बता दिया। कॉर्टिसोल के बॉडी में दो किस्म के एक्शंस हैं, इधर देखो मेरी तरफ, दो किस्म के एक्शंस, मेटाबॉलिक एंड नॉन मेटाबॉलिक। उससे भी पहले एक स्टेप पीछे जाते हैं, कॉर्टिसोल को रिलीज होने की नौबत ही क्यों पेश आई? व्हाट वाज द ट्रिगर? यस, ये प्रोसेसेस, इसकी डेफिनेशन, ये सिर्फ डेफिनेशंस लिखे हुए। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है, एंड प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, उसकी डेफिनेशंस है। फैट सिंथेसिस, फैट, इसकी तरह मैं बाद में आता हूं। दिस इज इंपॉर्टेंट। cortisol is essential for life. This line is very very important here. कभी किसी हार्मोन का अभी तक ये नहीं लिखा हुआ essential for life। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेस हमें 24 आवर में बहुत ज्यादा टाइम में कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से आ ही रही है। द हार्मोन मे नॉट डायरेक्टली इनिशिएट so much as allows certain processes to occur। खुद सो इतना ज्यादा काम नहीं करता, लेकिन कुछ प्रोसेसेस को करवाता है, जिसमें रहता है ग्लूकागॉन की हेल्प कर रहा है ग्लाइकोजिनोलाइसिस में, अभी मैंने आपको बात की इससे रिलेटेड, और ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करवा रहा है। ये इसकी जो अंडरलाइन की हुई ना लाइन, ये देखो गौर से, भी मैं बता चुका। तो ओवरऑल एक्शन अगर मेटाबॉलिक बताना तो वो क्या होगा? अंडरलाइन, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करना है? ग्लूकोज के अंदर, इसको ग्लूकोज में लेके जाना। यहां पे ग्लाइकोजन मेंशन था, ओके, दैट वाज रॉन्ग, इनटू द ग्लूकोज। और ये जो आपका क्लिनिकल सिनेरियो, what will happen? Cortisol reduces the sensitivity of many tissues, especially skeletal muscle, adipose tissue. By the way, again a viva question, why in stress there is need to increase blood glucose level? Why? ब्रेन की तरफ डेविएट करना। असल में ना जब बंदा पढ़ना शुरू होता है ना, इसको गाइडेंस से किसी बुक से पढ़ रहा होता है, पढ़ते पढ़ते बंदे को लगता है यार क्यों ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर रहा है, क्या इसको प्रॉब्लम क्या है? ये तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी रेजिस्ट करता जा रहा है,
उसकी रेजिस्टेंस बढ़ाता जा रहा है, ब्लड में ग्लूकोज आ नहीं रही है, सॉरी सेल के अंदर ग्लूकोज जा नहीं रही है, तो ये क्यों इंक्रीज कर रहा है? डेविएटिंग द होल बॉडी ग्लूकोज टुवर्ड्स वन टारगेट टिश्यू, दैट इज ब्रेन, बिकॉज इन स्ट्रेस द वन टारगेट टिश्यू व्हिच शुड वर्क मोर देन द अदर, इट्स द ब्रेन। तो ये ब्रेन की तरफ सारा इतना सारा मैकेनिज्म, ये जो मैंने 2-3 यहां पे मेंशन भी किए हैं, इन सबको इकट्ठा करके एक ही रिजल्टेंट है, वो क्या है? ब्लड ग्लूकोज बढ़ा दें ताकि किसकी तरफ जाए? ब्रेन की तरफ जाए। बट व्हाट इफ देयर इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रेस, जैसे कल बात हो रही थी, देयर इज कंटिन्यूअस इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, यस, इट विल लीड टू डायबिटीज, और वो उसकी तरफ लेके जाएगा, जैसे जिसने मैंने नीचे लिखा है एडिनल डायबिटीज। ओके, तो इफेक्ट ऑन फैट, क्या फैट के प्रॉपर्टीज हैं इसकी? लिपोलाइटिक प्रॉपर्टीज। ये वीक है, वीक इसलिए क्योंकि डायरेक्ट एक्शन नहीं है इसका, ये काम ये करवाता है सिर्फ ग्लूकोनियोजेनेसिस को रन करवाने के लिए, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को रन करवाने के लिए प्रोसेस चल रहा होता है, और ताकि वो उसी में यूज हो। अब आते हैं द अदर फंक्शंस, द नॉन मेटाबॉलिक। कॉर्टिसोल के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक नॉन मेटाबॉलिक की कोई लंबी चौड़ी डिटेल किसी भी हार्मोन की इतनी अच्छी नहीं आई, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट। एक पैराथायराइड हार्मोन की आई थी, उसके होती नॉन मेटाबॉलिक है, इसके भी नॉन मेटाबॉलिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं करवाता हूं। आपको पता है कॉर्टिसोल को कॉमन लाइफ में इसका रिप्लेसमेंट कौन है? आपने सुना होगा एक एथलीट में ड्रग टेस्ट हुआ तो पकड़ा गया, वो उसने स्टीरॉइड लिया हुआ। कॉर्टिसोल इज दैट, द ट्रू स्टीरॉइड, द ट्रू स्टीरॉइड। इसके हमारे पास ड्रग्स भी अवेलेबल। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि यार स्टीरॉइड लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, इट्स ऑलवेज अ नो, इट्स ऑलवेज अ नो। लेकिन कुछ कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें स्टीरॉइड ड्रग ऑफ चॉइस है, ये आज के बाद में अपने पल्ले बांध लेना। ये चीज ओवरऑल स्टीरॉइड को नो है, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट। क्यों नो है ये मैं बताने लगा अभी, कि क्यों स्टीरॉइड किसी को नहीं देने। इट्स नॉट अबाउट द बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिक थिंग, इट इज बिकॉज ऑफ द नॉन मेटाबॉलिक इफेक्ट्स ऑफ द स्टीरॉइड, जो अभी मैं आपको पढ़ाने लगा। और स्टीरॉइड देने किस कंडीशन में है? द टॉप ऑफ द लिस्ट इज ऑटो इम्यून डिजीजेस, रिमेंबर दैट। अभी मैं बताता हूं वो क्यों, वो भी अभी आएगा, नॉन मेटाबॉलिक फंक्शन में ही आता। ऑटो इम्यून डिजीजेस का बेसिक इशू क्या है? बॉडी की इम्यूनिटी सुपर एक्टिव हो जाती है, इतनी सुपर एक्टिव कि अपनी बॉडी को डैमेज करना शुरू हो गई। अब ये बात लाइन जहन में रखना, मैं आता हूं इसकी तरफ। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कॉर्टिसोल ऑन बोन्स? इज इट अ गुड थिंग, इज अ बैड थिंग? इट्स अ वेरी बैड थिंग। इट मेक्स द बोन वीक। ये बोन के अंदर से इसकी डीमिनरलाइजेशन वो काम करवाता है, रेट ऑफ डिक्रीजिंग द रेट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ऑस्टियोप्रोजेनेटिव सेल, decreasing the absorption of calcium from the gut, so overall decreasing the bone health. Effect on the connective tissue, thickening it or weakening it? ये ब्लू मैंने मेंशन किया हुआ इसलिए हाईलाइट करने के लिए ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी। क्या हो रहा है? वीक हो रहा है कोलेजन भी, ओके। इफेक्ट ऑन द वेस्कुलर सिस्टम, नॉट सो मच, जस्ट मेंटेनिंग विद द कैटेकोलामीज एपिनेफ्रीन। इफेक्ट ऑन द किडनी, इंक्रीज जीएफआर, यही याद रख लो, यही बहुत है। ये मैंने 3 डिफरेंट बुक्स से इकट्ठे किए हैं इसके इफेक्ट, 3 डिफरेंट बुक्स आप लोगों को दिखाने के। आई शेयर द लेक्चर, मुझे याद करवा देना, कोई मैसेज कर देना, कोई बच्चा अली या जीआर सीआर कोई मैसेज कर दीजिएगा मुझे, मैं लेक्चर शेयर कर दूंगा ग्रुप में। इफेक्ट ऑन किडनी क्या है? जल्दी से मेरे से रिवाइज करो। इफेक्ट ऑन बोन क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस द नेम ऑफ डिजीज, सिंपल। इफेक्ट ऑन बोन क्या है? वीकनिंग ऑफ द बोन। उसको आसान वर्ड में बोलो, डीमिनरलाइजेशन, आसान वर्ड्स में बोलो। ऑस्टियोपोरोसिस तो आफ्टर ऑल डिजीज है ना, जो बहुत कॉर्टिसोल ज्यादा तो डेवलप हो जाएगी। वो आपको बस याद रखने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस मैंने इसलिए लिख दिया साथ, ताकि आपको एक बन जाए कॉन्सेप्ट कि हाँ इसके एंड पे ये हो जाएगा। इसका मतलब है अगर किसी हेल्दी, कोई हेल्दी बंदा स्टीरॉइड खा रहा है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन बोन? वीक हो जाएगी। इफेक्ट ऑन सीएनएस, decreases the REM sleep but increases both slow wave sleep and the time awake. Effects of course mood, जो चीज हमारे स्लीप को इफेक्ट करेगी ना, हमारे मूड को इफेक्ट करेगी, हो ही नहीं सकता कि हमारी स्लीप इफेक्ट हो रही है और मूड इफेक्ट ना हो रहा। तो रेम स्लीप की ड्यूरेशन, आपको पता ना स्लीप के 2 पैटर्न्स हैं, द अर्ली पार्ट एंड द लेट पार्ट आर द रेम स्लीप, द इन बिटवीन इज द डीप स्लीप, नॉन रेम स्लीप। तो ये रेम की ड्यूरेशन कम कर देता है और दूसरी नॉन रेम की इंक्रीज कर देता है। इफेक्ट ऑन हीलिंग, इज इट गुड और बैड? इट इज वेरी गुड। स्टीरॉइड हील बहुत अच्छा करवाता है।
हर चीज नेगेटिव नहीं है स्टीरॉयड के साथ, हमें नेगेटिव पिक्चर जरूर अवेलेबल है हमारे पास इसकी, लेकिन इज एवरीथिंग इज नॉट नेगेटिव. इट इंक्रीजेस हीलिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड, इंक्रीजेस ग्लूकोनियोजेनेसिस, इससे हीलिंग ज्यादा होती है. इफेक्ट ऑन ब्लड सेल काउंट. अच्छा ये मुझे जरा सारी रीड देख के मुझे इसका एंड बताओ एक लाइन पढ़ के कि क्या बनेगा, इसका नेट पिक्चर क्या बन रही है, मुझे ये पढ़ के बताओ. क्या हो रहा है इम्यूनिटी को? एक नॉर्मल बंदे में हम ये चाहेंगे? किस में चाहेंगे? Autoimmune disease. Now this is the logic of using steroid in the autoimmune diseases. When there is a hyperactivation of your own immunity, it just normalizes it by decreasing it. उसको नॉर्मल लेवल पे लेकर आता. और आपको मैं बताऊं, ऑटोइम्यून डिजीज स्टीरॉइड को बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं पेशेंट. मैं ये नहीं कह रहा ऑटोइम्यून रिवर्स हो जाती है, लेकिन साइन सिम्टम डिसअपियर हो जाते, टोटल डिसअपियर हो जाते. तो स्टीरॉइड इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन बिकॉज ऑफ इट्स एंटी इम्यूनिटी इफेक्ट. लेकिन जस्ट इमेजिन कि कोई एथलीट इसको ले रहा है, अपना मसल बल्क तो और वो सब कुछ तो उसका वक्ती तौर पे शायद वो उसको इंक्रीज कर देगा, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, स्टेमिना इंक्रीज हो जाएगा जस्ट टेम्परेरीली, बट जो उसके साइड इफेक्ट साइड पे चल रहे हैं, कुशिंग डेवलप हो सकता है उसमें, सबसे इंपॉर्टेंट. और उसके अलावा दूसरा प्रॉब्लम क्या खड़ा होने वाला है उसमें, इम्यूनिटी बहुत वीक होने वाली. यस नहीं, क्यों? Cortisol is helping in stress, does not causing stress. It is not causing stress. It is helping. हाँ वो अलग बात है कि एक नॉर्मल बंदा अगर कॉर्टिसोल स्टीरॉइड ले रहा है तो उसमें तो फिर जाहिर ऑफ कोर्स इट विल लीड टू डायबिटीज एट द एंड. आपको पता है, आप ऐसे एथलीट की गूगल पे हिस्ट्री पढ़ो जिन्होंने स्टीरॉइड हिस्ट्री में कभी यूज किए हैं, द एंड ऑफ देयर लाइफ इज मिजरेबल. When they go to the old age, suddenly they become house of diseases because their immunity is continuously going down, but because of the young age they just go through that phase. But when they enter above 40, above 50, they just go through, they become total bedridden patients. उनकी बॉडी, उनका नजला जुकाम खांसी भी उनको बेड पे लिटा देता है, इतनी इम्यूनिटी इसमें लो हो जाती है. लेवल ऑफ प्लाज्मा कॉर्टिसोल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज. तो ये सारी स्ट्रेसफुल कंडीशन लिखी हुई है नीचे. उसमें क्या क्या हो सकती है? ट्रॉमा ऑफ ऑलमोस्ट एनी टाइप, फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, इन्फेक्शन, इंटेंस हीट और कोल्ड, सर्जरी, restraining an animal, any debilitating illness, injection of epinephrine, injection of necrotizing substances beneath the skin. So there can be anything which can cause this stress. Your SCQ in this slide. Can you name the hormones which are helpful in stress? There are the hormones. Please write them down. Just write down the names. That is enough for me. Write down the names which are increase in blood during stress condition. Please write down the names. ये वाला हमने कल भी की थी स्लाइड, इफ यू रिमेंबर इट. एड्रीनल कॉर्टेक्स में ये वाला पार्ट हमने किया था, स्ट्रेस इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग विद द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिसोल, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, इंक्रीज कैटाबॉलिज्म और फैट एंड प्रोटीन, डिक्रीज इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, डिक्रीज इम्यून रिस्पॉन्स. याद रखिएगा, अभी आ रही आगे साइड में एक दिखाता हूं आपको. कॉर्टिसोल इज एंटी इम्यूनिटी एंड एंटी इंफ्लेमेटरी एज वेल. मैंने आपको सिर्फ अभी एक इंडिकेशन बताई है जिसमें स्टीरॉइड एज अ ड्रग यूज करते हैं. कौन सी? ऑटोइम्यून. इट कैन ऑल्सो बी यूज इन सीवियर काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशंस. बॉडी में कोई ऐसी इन्फ्लेमेशन जो बहुत पेन कर रही है, फीवर करवाया हुआ है लगातार, उसको भी ट्रीट करता है स्टीरॉइड. लेकिन अगेन हम कोई फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग नहीं है ये. अगर किसी को इन्फ्लेमेशन या फीवर है तो उसमें स्ट्रेट अवे स्टीरॉइड नहीं शुरू कर लेते हैं, हम उसमें दूसरी ड्रग्स यूज करते हैं. अगर उसको पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, देन वन हैज टू शिफ्ट टुवर्ड्स व्हाट? स्टीरॉइड्स. उसकी तरफ आना पड़ता फिर अल्टीमेटली. व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी काइंड ऑफ इंफेक्शन और इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन. ये इसके 5 साइन है. दीज आर दी एंटी, ये गाइटन में लिखे हुए हैं, मैं जैसे इसकी हेडिंग रीड आउट कर रहा हूं. द एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट ऑफ द कॉर्टिसोल. ये एंटी इन्फ्लेमेशन कैसे करता है? स्टेबलाइजेशन ऑफ लाइसोसोमल मेम्ब्रेन. क्या इसका क्या इन्फ्लेमेशन पे एंटी कैसे होगा? ये जब लाइसोसोमल मेम्ब्रेन स्टेबलाइज होगी तो उसके जो एंजाइम्स हैं वो रिलीज नहीं होंगे. एंजाइम रिलीज नहीं होंगे तो वो सारा कैटाबॉलिक इफेक्ट नहीं आएगा.
कॉर्टिसोल डिक्रीजेस माइग्रेशन ऑफ डब्ल्यूबीसीज, यही तो कर रहे हैं इन्फ्लेमेशन, ये साइट पे जाते हैं, वो कीमोटेक्सिस मूवमेंट उसको डिक्रीज कर रहा है। कॉर्टिसोल डिक्रीजेस फैगोसाइटोसिस ऑफ द डैमेज सेल, पस फॉर्मेशन को इनहिबिट कर रहा है। कॉर्टिसोल डिक्रीजेस द परमेबिलिटी ऑफ द कैपिलरीज, परमेबिलिटी कम होगी, डब्ल्यूबीसीज माइग्रेट करके नहीं जाएंगे। कॉर्टिसोल डिप्रेसेस द इम्यून सिस्टम, ये अभी हमने इसकी बात की, अभी एक मैं आपको फ्लो चार्ट भी दिखाता हूं। एंड कॉर्टिसोल आल्सो एटीन्यूएट्स फीवर, ये फीवर को भी एंटी करते हैं, लेकिन मैं फिर वही बता रहा हूं, अगर किसी को फीवर या इन्फ्लेमेशन है, कॉर्टिसोल इज नॉट, सॉरी, स्टीरॉइड इज नॉट द फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग, ये हमेशा हम लेटर ऑन लेते हैं क्योंकि इसके नेगेटिव इफेक्ट भी हमें पता है इसके साथ शामिल होता है। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा रिस्पॉन्स है? इन्फ्लेमेटरी। राइट पे कौन सा है? इम्यून रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेशन का जो ट्रिगर है वो एक एंजाइम है जो आपकी एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, फॉस्फोलाइपेज। फॉस्फोलिपिड्स कहां पे होते हैं? सेल मेम्ब्रेन। फॉस्फोलाइपेज क्या करता है? फॉस्फोलिपिड को तोड़ता है, और इसके जो रॉ प्रोडक्ट हैं, ये जो रॉ प्रोडक्ट बन रहे हैं एंड पे आके, ये सारे के सारे इन्फ्लेमेशन करवाते हैं। और वहां पे कॉर्टिसोल कहां पे इनहिबिट कर रहा है? द फर्स्ट पार्ट, फॉस्फोलाइपेज इनहिबिटर। कॉर्टिसोल वहीं पे ब्रेक लगा देता है इस प्रोसेस की। लेकिन साथ ही साथ एक प्रॉब्लम इधर क्या चल रहा है? इम्यूनिटी को भी इनहिबिट कर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इनहिबिशन मैक्रोफेज के लेवल पे आती है। मैक्रोफेज आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, अगर मैक्रोफेज एंटीजन प्रेजेंट नहीं करेंगे, टी सेल कभी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। एक एमसीक्यू याद आ गया मुझे यहां पे, कॉर्टिसोल इनहिबिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटीज, तो उसमें याद रखिएगा टी सेल मेडिएटेड। इट इनहिबिट्स विच इम्यूनिटी? टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। उसमें भी इम्यूनिटी की 4-5 लिखी होंगी बातें आगे ऑप्शंस में, ये टी सेल को इनहिबिट करता है एक्चुअली, क्योंकि मैक्रोफेज को जब ये इनहिबिट करेगा तो ऑटोमेटिकली नंबर 1 सेल विच विल बी इनहिबिटेड इज टी सेल, बाकी तो सब बाद में आता है। हेल्पर टी सेल वो भी, अगर उसमें से भी आगे डिटेल में जाना हो, द हेल्पर टी सेल इम्यूनिटी दैट इज इनहिबिटेड विद कॉर्टिसोल। So let me sum up all these things. There are two effects of cortisol. One are metabolic, other are non-metabolic. Metabolic में तीन कौन से? Carbohydrate, lipid and protein. Lipid and protein catalysis, and for carbohydrate formation of glucose. Formation of glucose में the most loved process for cortisol is gluconeogenesis. Gluconeogenesis occur in which two organs? Liver and kidney. 95% लिवर, 5% किडनी, तो ये दोनों को अप रेगुलेट करता है। ओके, जो सेकंड मोस्ट लव्ड बाय द कॉर्टिसोल इज लिवर ग्लाइकोजिनोलाइसिस, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट मसल ग्लाइकोजिनोलाइसिस। व्हाट आर द नॉन मेटाबॉलिक इफेक्ट? 5 नंबर का एमसीक्यू है, नॉन मेटाबॉलिक अकेला। यस, वीकनिंग ऑफ बोन्स, देन सीएनएस पे इफेक्ट मैंने आपको बताया, फिर इसका मैंने कोलेजन पे आपको इफेक्ट बताया। यस, ब्लड वेसल सर्कुलेटरी सिस्टम पे कैटेकोलामीन के साथ मिलकर काम करता है, और उसके बाद क्या है? एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट है, एंटी इम्यूनिटी। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको आगे ये भी आना चाहिए कि हाउ इट इज एन एंटी इंफ्लेमेटरी। 3 मार्क्स एमसीक्यू। हाउ कॉर्टिसोल एक्ट्स एज एन एंटी इंफ्लेमेटरी, हाउ कॉर्टिसोल एक्ट्स एज एन एंटी इम्यूनिटी। आपकी गाइडन में ऐसे 1 2 3 4 5 पॉइंट्स लिखे हुए इसके साथ। एंटी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया हुआ उन्होंने गाइडन के अंदर, बाकी रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स इतने अच्छे एलैबोरेटेड नहीं। एक टर्म है कुशिंग सिंड्रोम, एक टर्म है कुशिंग डिजीज। यू नो द डिफरेंस बिटवीन द टू? रेज योर हैंड। मुझे एक बात बताओ, अगर किसी में कॉर्टिसोल लेवल ज्यादा है, कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज्यादा है, व्हाट विल बी द लेवल ऑफ एसीटीएच? नेगेटिव फीडबैक से क्या होना चाहिए? अगर ये सिचुएशन है जिसमें कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा है लेकिन नेगेटिव फीडबैक से एसीटीएच बहुत कम है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज कुशिंग सिंड्रोम। प्रॉब्लम किधर है कुशिंग सिंड्रोम में? एड्रीनल कॉर्टेक्स में, एंटीरियर पिट्यूटरी में नहीं। व्हाट इफ देयर इज टू मच ACTH causing too much release of cortisol? Where is the problem now? Anterior pituitary. This problem is called as Cushing disease. ये फर्क है। तो पहले आसान कर लेते हैं। कुशिंग सिंड्रोम में प्रॉब्लम किधर है? एड्रीनल कॉर्टेक्स। कॉर्टिसोल बढ़ेगा, नेगेटिव फीडबैक से ACTH को कम कर देगा। कुशिंग डिजीज में प्रॉब्लम किधर है?
anterior pituitary gland. There is some kind of a ACTH producing tumor causing too much increase in ACTH, और ACTH से करेगा जाके वो कॉर्टिसोल को क्या करेगा, ज्यादा कर देगा। दोनों केसेस के अंदर क्या सिम्टम्स में कोई फर्क हो सकता है पेशेंट के? नो, बोथ आर द पेशेंट ऑफ कुशिंग, आइदर सिंड्रोम और डिजीज, सेम सिम्टम्स इंक्रीज, क्योंकि सिम्टम तो कॉर्टिसोल की वजह से आ रहे हैं, और कॉर्टिसोल दोनों में एक जैसा बढ़ा हुआ है, उसमें कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर। मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूं, जरा मुझे डायग्नोसिस बताना आप। ऑल, मैं सिंपल कर देता हूं, ऑल द सिम्टम जो कि पहले सिनेरियो में मैंने बताया आपको। MRI scan of adrenal cortex was done. Adrenal cortex was found to be normal. एक मिनट, इतना पुत्र सिंपल नहीं है, इतनी तुम लोग जंपे मारनी शुरू कर दो। MRI scan of anterior pituitary was done. It was normal. The level of cortisol and ACTH were both sky high. ये देखना अभी आने लगा अब, ड्रग्स ले रहा होगा, ACTH ज्यादा होना चाहिए। इसी को आंसर कर लेते हैं। अगर कोई स्टीरॉयड ड्रग्स ले रहा है, एस्थमा में इन्फ्लेमेटरी ले लेते हैं ना, एस्थमा में कोई स्टीरॉयड ड्रग ले रहा है, तो उसमें ज्यादा क्या होना चाहिए? शायद कॉर्टिसोल, ACTH। सॉर्ट आउट हो गया ड्रग्स वाला मामला। हाइपोथैलेमस में क्या? CRH, you're talking about CRF or CRH, it might be more, might be there, very good. Hypothalamus tumor हो सकता है, good. Anything else? Have you ever heard the term in anatomy, paraneoplastic syndromes? कोई बात नहीं, मैं आपका एनाटॉमी का नॉलेज चैलेंज नहीं कर रहा है यहां पे, मैं आपको सिर्फ कोई चीज नहीं पता होती, कोई बात नहीं, देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, लिसन टू इट एंड रिमेंबर इट। इधर देखो मेरी तरफ, वन इज नियोप्लास्टिक, नियोप्लेसिया को तो पता होगा ना? हैव यू नेवर हर्ड द टर्म नियोप्लेसिया? क्या होता है नियोप्लेसिया? इट इज कैंसर यार, द मेडिकल नेम फॉर कैंसर इज नियोप्लेसिया। चले कोई बात नहीं, देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट डे। ओके, लिसन टू मी, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये नहीं है, मैं मतलब पहली बात ही यहां पे खत्म हो गई। नियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स आर द सिंड्रोम ड्यू टू मल्टीपल कैंसर्स। गौर से सुननी है बात। नियोप्लास्टिक सिंड्रोम एक टर्म है जिसका मतलब क्या होता है? द सिंड्रोम, आपको पता है सिंड्रोम इज अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस। देयर आर मेनी डिजीजेस इन द बॉडी ड्यू टू मेनी नियोप्लेसिया। ये कब होता है? व्हेन देयर इज अ ट्यूमर व्हिच हैज मेटास्टाइज्ड। था लंग्स का, लिवर में भी चला गया, वर्टिब्रा में भी चला गया, ब्रेन में भी चला गया, तो ऑफ कोर्स कोई एक फीचर तो नहीं होगी पेशेंट, मल्टीपल ऑर्गन, इनको कहते हैं नियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स। एक टर्म है पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स, गौर से सुननी। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम आर ऑलवेज एंडोक्राइनोलॉजिकल। इनके सिम्टम क्या आते हैं? एंडोक्राइनोलॉजिकल। अब सुनो बात, सिंड्रोम ट्यूमर किसी ग्लैंड का है, लेकिन उस ग्लैंड के अंदर नहीं है, उस ग्लैंड के बाहर कहीं और पड़ा हुआ। आपको मैं बात समझाता हूं, मेरी बात सुनो। ये जो मैंने आपको सिनेरियो अभी बोला, जिसमें MRI स्कैन एड्रिनल कॉर्टेक्स का नॉर्मल था, जिसमें एंटीरियर पिट्यूटरी का स्कैन नॉर्मल था, इसके लंग्स के अंदर एक ट्यूमर पड़ा हुआ था, और उस ट्यूमर का नाम ही ये है ACTH प्रोड्यूसिंग ट्यूमर। ये बहुत हैरानकुन बात है कि किसी और ऑर्गन में है, लेकिन प्रोड्यूस वही चीज कर रहा है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी बना रहा है। इसको कहते हैं पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। इसी तरह एक सिनेरियो है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का, वो भी आपके लेवल पे था नहीं तो मैंने डिस्कस नहीं किया वहां पे, कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का सिनेरियो है, उसका पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा है, कैल्शियम बहुत ज्यादा है, लेकिन पैराथायरॉयड ग्लैंड नॉर्मल है, उसमें कोई ट्यूमर कुछ भी नहीं है, एब्सोल्युटली फाइन MRI स्कैन, और उसमें भी पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, देयर इज अ ट्यूमर एल्सवेयर इन द बॉडी। अगर ACTH और कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा आ रहा है, तो ये तो बात श्योर शॉर्ट हो गई कि प्रॉब्लम ACTH की वजह से। अब ढूंढना क्या है बॉडी के अंदर कि ACTH का सोर्स किधर, जो कि हम पिट्यूटरी को रूल आउट कर चुके हैं। नाउ गेटिंग दिस पॉइंट, दिस स्लाइटली अ कॉम्प्लिकेटेड वन, one can be the hypothalamus tumor, absolutely right, and others can be the paraneoplastic syndromes. हाइपोथैलेमस का ट्यूमर इंडिविजुअली इसलिए बहुत रेयर है क्लिनिशियन में, क्योंकि हाइपोथैलेमस एक बिल्कुल माइक्रो न्यूक्लियस है,
और उसके अंदर और भी माइक्रो न्यूक्लियाई हैं, और अगर उसका कोई ट्यूमर होगा तो इट विल नॉट बी अफेक्टिंग ओनली दिस CRH. There are many functions of the hypothalamus which will be affected. You know all that. The appetite center, the hunger center, the thirst center, and many more. ADH और ऑक्सीटोसिन बनता है वहां पर, उसके फंक्शन इंपेयर्ड होना शुरू हो जाएंगे, तो वो फिर मल्टी फंक्शंस हो जाएंगे. तो इसलिए वो क्लिनिकल फीचर में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ रीजन बता रहा हूं कि वो क्यों नहीं हो सकता. So will you be able to handle the function of cortisol? Will you be able to handle the scenario of Cushing syndrome and Cushing disease? How will you differentiate in clinical scenario the difference between Cushing disease and Cushing syndrome? ACTH levels. और अगर वो आपसे ये डिफरेंस पूछ रहा है ना, तो आपको ACTH लेवल बताएगा, खाली कॉर्टिसोल लेवल पे ये नहीं पूछेगा, क्योंकि पेशेंट के सिम्टम साइंस दोनों में, Cushing syndrome और डिजीज में सेम होता है. थैंक यू वेरी मच. एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क.